Hello students, welcome back again my YouTube class. So students, in this class we will discuss class 8 NCERT chapter number 3, that is square, cube and cube root exercise 3.1 to question number 1. So question number 1 is that find the cube. So here is number given 12 minus 16 8.5. We have to find the cube value of this number. So how to find? It's a very easy. What you have to do, just look at here. I'm just selecting 12. I'm just taking 12. We have to find the cube of this number. It means what? It means we have to write 12 into 12 into 12. Okay, and we already know what is the square of 12. If it means if we multiply 12 times, so we will get 144. We will get okay, if we multiply 12 into 12, so we will get 144. Again multiply with 12. Now just look at what we will get when we multiply 12 in 144. So just look at here, 12 fours are 48, carry 4, 12 fours are 48, 48 and 4 52, 2 carry 5, 12 ones are 12 and 12 5 17. So answer is 1728. So simply just write here 12 cube is equal to 1728. Okay, similarly just take this next number, that is minus 16. So just look at here, minus 16 cube is equal to, it means what? Minus 16 into minus 16 into minus 16. Okay, so just and we know that the square of 16 here, just look at here, 16 into 16, it means 16 square and minus minus plus. So we know that the 16 is 256. So just write here 256 and multiply again with minus 16. So just look at here, minus plus, so it's come minus, and now multiply 256 by 16. So you will get 16 6 are 96, 6 carry 9, 16 5 are 18, 18 or 9 is 89. So this is 9 and 8 is remainder, and 16 2s are 32 and 32 8, this will be 40. So 40. So it means here 16 cube minus 16 cube is equal to minus 4096. Okay, just look at here. Please remember one thing. What is that? Key minus cube is always in minus. Okay. But this thing is not work in a square, because वहाँ पे क्या था, minus का square is always positive. Now just look at the third number is 8.5. So what is given? 8.5. So third is 8.5. So just write here 8.5 cube is equal to 8.5 into 8.5 into 8.5. Now, so 8.5 into 8.5 firstly find. So how can you find this one? Just use your square formula. 8 8 is 64, 5 5 are 25 and 8 5 are 40, 2 are 80. Okay, so 5 add this to 2 and 8 6 4 8 4 12, 2 carry 1 6 and 7. So 7225. Okay, now this so this will be 7225 into 0, so 8.5. and just look at here, decimal place यहाँ पे भी, यहाँ पे यानी 2 place पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72.25. now just multiply 72.25 multiply by 8.5. so you will get 5 5s are 25, so 5 carry 2, 5 2s are 10, 2 12 carry 1, 5 2s are 10, 1 11, sin 5 so 35 and 36. Now just leave one place and multiply by 8.
So you will get 5 8s are 40, 0 carry 4, 8 to 16, 4 20, 0 carry 2, 8 2s are 16, 16 to 18, 8 carry 1, 8 7s are 56, 1 57. Now just add. So you will get 5 2 1 8 6 14, 7 3 10 1 11, 5 and 1 6. So your answer is 6 1 4 1 2 5. Okay, and now one thing is remaining, that what, just count how many decimals are here. So here is decimal 1 and 2 is 3, so just count here 1 2 3. So this is the answer. It means answer is 614.125. so this is your answer. ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. करना कुछ नहीं है, बस अगर यहाँ पे कह रहा है क्यूब फाइंड करना, तो सारे नंबर्स का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका क्यूब होगा. ठीक, अब यहाँ पे करना फाइंड द परफेक्ट क्यूब. अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं, तो देखिए कैसे इसका फाइंड करेंगे. चलिए कर लेते हैं इसको. उससे पहले बोर्ड को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, वो भी. Okay, now just look at here. 512. If I talk about 512, so this is question number 2. 512. So करना क्या है, इसका फैक्टर करो. इसका फैक्टर कैसे करोगे, मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर करना है. तो चलिए फैक्टर करते हैं. तो लास्ट में बच्चों क्या है, 2 है, तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा. 2 2s are 4, 1 बचा इसके पास गया, हो गया कितना 11. तो 2 5s are 10, 1 इसके पास गया, हो गया 12, 2 6s are 12. अभी भी लास्ट में क्या है बच्चों, 2 6 है, देन इज डेफिनेटली डिवाइड बाय 2 से डिवाइड. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Now the last digit is 8, so divide by 2. 2 6s are 12 and 2 4s are 8. Now just look at last digit also is 4, so just divide by 2. 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Last digit 2 again, so 2 1s are 1, 2 6s are 12. So 2 8s are 16, and we know that 2 4s are 8, and the last is 2 2 2s are 4, and the remaining 2 2 1s are 2. Now we can also write cube root of 512 is equal to, in cube root of how many times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times. So just write here 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times, 1 2 3 4 5 6. Just write 2 more times. So this is your answer, but it's not totally complete. Now we have to make a pair of 3 3. So 2 2. Okay, just 1 is remaining. 9 times था ना, तो 9 टाइम करना पड़ेगा ना. यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए. अब देखो जब रूट के बाहर आएगा तो ये आएगा, यहाँ से केवल 1 आएगा, यहाँ से भी केवल 1 आएगा, और यहाँ से भी केवल 1 आएगा. सो यू विल गेट 8. नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सो क्या है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब. दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो ये क्लियर हो गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है सेकंड 800. 800 का देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मैं बताऊं. 800 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब आप बोलोगे सर क्यों. देखो, अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो होते 3. कितने होते, 3 होते, या 3 के मल्टीपल होते. या तो 3 होना चाहिए था, या 9 होना चाहिए था, या 12 होना चाहिए था. बट यहाँ पे कितना है, केवल 2. कितना है, ओनली 2. तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. चलो देख लेते हैं. 800 की बात करते हैं. 800 को डिवाइड करना स्टार्ट करो, तो 2 से करेंगे तो 400 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200 आएगा. अगेन स्टार्ट विद 2, सो वी विल गेट 100. अगेन स्टार्ट विद 2, सो वी विल गेट 50. नाउ अगेन 2, सो वी विल गेट 25. नाउ जस्ट लुक एट स्टूडेंट, दिस इज 5 5s are 25 and 5 1s are 5. Clear? Now it means if we think about 800, cube root of 800, so you will get cube root of 1 2 3 4 5. 5 times 2, 1 2 3 4 5, and 2 times 5, 5 into 5.
नाउ जस्ट लुक एट स्टूडेंट, यहाँ पे पेयर तो इसका बन रहा है, केवल इसका पेयर बन रहा है। अब इसका पेयर बन रहा है क्या और इसका पेयर बन रहा है क्या? नहीं, न तो 2 का पेयर अगला पेयर बन रहा है और ना ही 5 का अगला पेयर बन रहा है। तो बच्चों अगर पेयर नहीं बनेगा तो हम यहाँ सिंपली कह देंगे कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपली लिख दें नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सॉरी फॉर दैट स्क्वायर, बार बार मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, बार बार मैं मुंह से स्क्वायर निकल रहा है उसके लिए, सॉरी। चलिए तो ये बात समझ गए। चलिए यानी ये दूसरा जो है हमारा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड सिंपली 4 क्वेश्चन का। फोर्थ क्या है? -19,683। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए पहले मार्केट बदल दिया जाए। देखो बच्चों, नंबर क्या ले लिया जाता है? -19,683। चलो तो अभी हम माइनस को भूल जाते हैं, हम केवल नंबर लेंगे 19,683। इसको फैक्टर करते हैं। चलिए 19,683 है। अभी डिवाइड कैसे होगा? अब लास्ट में 3 है तो इसका मतलब ये थोड़ी है 3 से डिवाइड होगा, हो सकता है 3 7 से हो सकता है 9 से नहीं हो सकता है, किसी और नंबर से हो। तो ये पता करने क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सारे डिजिट को ऐड कर दो। ऐड करो, देखो 1 9 10 10 6 16 और 8 कितना हो जाएगा? 16 4 24 और 3 27 आ रहा है। तो 27 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 6 18, 1 गया इसके पास गया, कितना हो गया? 16। 3 5 15, 1 गया इसके पास, कितना हो गया? 18 हो गया। 3 6 18 और 3 1 3। अब देखो बच्चों ये किससे डिवाइड होगा? 6 5 11 11 1 12 और 6 18। अभी भी ये क्या हो रहा है? 18 से डिवाइड हो रहा है। नॉट जस्ट डिवाइड इट। 3 2 6, क्या 5 है तो 3 1 3, 2 बचा इसके पास का 26 हो गया। 3 8 24, 2 बचा 21 हो गया। 3 7 21। अब ये आ गया 21 87, ये भी 3 से डिवाइड है, डिवाइड किए 3 7 21, बचा क्या? 8। अब 8 है तो 3 2 6, बचा 2 हो गया। 3 9 27। अब ये 729 है तो ये भी 3 से डिवाइड है। 3 2 6, 2 बचा इसके 1 हुआ, इसके पास गया 12 हो गया। 3 4 12 होता है ना बच्चों। 3 4 12 और ये 3 3 9। अगेन डिवाइड बाय 3। 3 8 24, 3 1 3। Again divide by 3. So this is 8. So 3 2 6. Now 1 is remaining here in this game. 7. 3 27 3 81. Okay, now divide it again by 3. So 3 9 27. You can able to see that? Yes, one more 9. 3 3 9. So 3 is remaining, 3 1 3. ठीक है, तो सारा डिवाइड हो गया यहाँ पे हमारा। तो ये वैल्यू आ गई, यानी हम इसको यहाँ जो वैल्यू है -19,683 है, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्यूब रूट ऑफ है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सारे टर्म क्या होंगे? माइनस के होंगे। सारे के सारे टर्म क्या होंगे? माइनस के होंगे। तो देखिए पेयर बनाइए तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये बन गया। मतलब ये क्या होगा? -3 × 3 × 3, एक इसके साथ माइनस रख दिया, चलो सारे नंबर माइनस रख दो, इंटू -3 × -3 × -3 और एक इंटू -3 × -3 × तो देखो बच्चों जब पेयर से बाहर आएगा, जब ये क्यूब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ से एक -3 आएगा, यहाँ से एक -3 आएगा और यहाँ से एक -3 आएगा। और इसका आंसर हमें पता है कितना होता है? 27 होता है और ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी क्या हो रहा है? आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो चलिए लास्ट है उसको हम पिक कर लेते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे। तो देख सकते हो बच्चों लास्ट क्या है हमारा? लास्ट है हमारा 8th वन, क्या गिवन है? 64/729। तो ये क्यूब रूट में हम इसको पहले लिख लेते हैं, लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? चलो 64 का फैक्टर करो। तो 64 का फैक्टर करोगे तो 2 से पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो 2 3 6, 2 2 4,
16 2 जा 32, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. Now we can simply write this value in this form: 2 into 2 into 2, 3 3, 2 into 2 into 2, and now just divide by, this is 729 and we know that this is a cube of 7, so just this is cube of 9, so just write here 9 into 9 into 9 simply. So this is a pair of this number and this, so when you open your bracket, so you will get 2 times 2 on the top and 1 time 9 in the denominator. So this is equal to 4 by 9. Clear? So this is also a perfect square. So यहाँ पे कौन सा था, ये perfect square था, ये था, बट ये perfect square नहीं है. ठीक, तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now students, just look at these two questions, question number 3 and question number 4. I am taking the both question together because both question if we solve together, so we can able to understand what is mean I want to say. If you remember in the introduction class, अगर आपने introduction class ली होगी तो वहाँ मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था. यहाँ भी मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिराइव करूँगा, परेशान मत होइए. तो एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि ऑड और इवन नंबर के बारे में. मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा था और फिर वहाँ पे मैंने समझाया था. यहाँ भी देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा, और कोई इवन नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा. यानी सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऑड का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड में आएगा, और इवन का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो भी जो आएगा वो भी क्या आएगा बच्चों, इवन ही आएगा. ऑड का हमने क्यूब किया तो क्या है, ऑड आया. इवन का हमने क्यूब किया तो क्या है, इवन आया. और इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही बताना है कि ये ऑड का क्यूब है कि ये इवन का क्यूब है. तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखिए, फाइंड क्यूब ऑफ इवन नंबर, यानी इवन नंबर के जो क्यूब है उसे फाइंड करने हैं. तो बच्चों इवन नंबर क्या हुआ, इवन नंबर आपका हो गया जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया. तो ये सारे नंबर क्या आपके इवन नंबर है. तो इनका क्यूब जो होगा वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा. तो यही चीज हमें बताना है. तो सिंपल सी बात है, अगर वो डिजिट इवन हुई तो वो भी क्या होगा, इवन का क्यूब होगा. तो चलो देखो, जैसे फर्स्ट नंबर देखो, लास्ट में क्या है 9, तो ये क्या है, ऑड है. लास्ट में क्या है 0, तो ये क्या है, इवन है. तो ये जो होगा एक इवन का क्यूब होगा. और लास्ट में 5 है, 5 है, 1 है, 3 है. अब यहाँ देखो 512 है. 2 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे. 512 क्या है, ये भी एक इवन है. अब यहाँ 4 है, ये भी क्या है, इवन है. यहाँ 5 है, ये ऑड है. ये 3 क्या है, ऑड है. तो यहाँ पे हमें 3 नंबर मिले. कौन कौन से, तो एक तो 20,000, दूसरा 2000, एक मिला 512 और एक मिला 30,824. तो ये 3 यहाँ पे ऐसे नंबर हैं जो क्या है, इवन है, और ये क्या है, उसका क्यूब है. चलिए उसी अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की. यहाँ पे देखो बच्चों क्या गिवन है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर में आपका आता है 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है. ये सारे नंबर क्या आपके ऑड है. अगर इनके इसके बाद बाकी से सारे नंबर को छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे. तो बच्चों देखो ऑड की बात करें तो यहाँ देखो 9 है, ये ऑड है, ये 9 है, ये ऑड है, ये 5 ये ऑड है, ये 1 ये ऑड है, ये 7 ये ऑड है. तो ये सारे नंबर क्या हो गए, आप इसको मार्क कर दीजिए. ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ठीक है. तो यानी यहाँ पे आपके सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ एंड नाइन्थ ये क्या है, सारे ऑड के स्क्वायर है. तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है. चलिए इस पार्ट का, क्योंकि पार्ट 1 है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था वीडियो काफ़ी छोटी बनाऊंगा. तो पार्ट 1 का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो है आपका कि हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है. तो मैंने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर रखा हुआ है. क्या करना है आपको, मैंने क्वेश्चन ले रखा है -18, क्योंकि प्लस वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको समझा रखा है. तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ले रखा है -18 का, क्योंकि माइनस वाला भी समझाना आपको जरूरी है. तो करना क्या है, पहली बात तो आप माइनस को भूल जाइए.
यानी आप क्या करेंगे, माइनस को एकदम इग्नोर कर दीजिए कि ये नंबर क्या है, माइनस वाला है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और ध्यान दीजिए इस टेबल पे। अब टेबल पे अब क्या करना है, हमें बस फाइंड करना है 18 का क्यूब फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है बच्चों, 18 का। 18 का क्यूब फाइंड करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं इस टेबल पे। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 हो गया, ये 3 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 8 हो गया, और यहाँ बच्चों 8 का क्यूब हो जाएगा। देखो बहुत टफ वाला क्वेश्चन आ गया कि 1 का क्यूब कितना होता है, ये तो सर आपने बताया नहीं। बताया बेटा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करो आना तो उसमें 1 ही है। अब देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24 हो गया ये आपका बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों 8 8 64 हो गया। अब 64 3 जा देख लो कितना होता है, तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 1 19 हो गया। कितना आ गया बच्चों, 192 आ गया। अब देखो बच्चों 8 का क्यूब है तो 8 8 64 और 64 8 जा होता है, तो कितना होता है 216 आता है इसका। सही है, रॉन्ग हो गया, तो 6 का होता है ना 216। 8 8 64, देखो ध्यान से कर गया बच्चों मेरे भी। हाँ 512, यस कितना आता है बच्चों, 512 आता है। चलिए अब इतना हो गया, इतना होने के बाद क्या करोगे आप, मैंने बताया था क्या करना है, सबसे लास्ट वाले डिजिट की टांग पकड़नी है और उसको खींच के ले आ देना है कहाँ पे, नीचे। मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, लिख दिया नीचे। अभी जो बच्चों 51 में जाना, 51 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया 51 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 1 3 9 5 14 का 4 कैरी 1 1 एंड 2 हो गया। तो अब यहाँ से ये जो 3 है बच्चों, आप इसको यहाँ नीचे उतार दीजिए 3, और इसको कान पकड़ के इसके बाद यहाँ लाइए, यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 24 ऐड कर देंगे यहाँ, तो 4 4 8 2 2 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों 48। अब 48 का ये जो 4 है ना, आप इसको नीचे उतार दीजिए, और ये जो 4 है ना बच्चों, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो +4, ये कितना आ गया 5, और ये 5 पूरा आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू था 18 का क्यूब, वो कितना आया, वो तो आया आपका 5832। लेकिन बच्चों आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है -18 का, तो इसी के आगे आप माइनस लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ गया। तो चलिए 3 क्वेश्चन, इसके जो अनदर 3 क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। तो बच्चों आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो यहीं पे इसको ब्रेक देते हैं। अब आगे जब पार्ट 2 हुए तो इसके रिमेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए